Hello dear RBI Grade B aspirants and welcome to EduTap. So guys, your RBI Grade B exam is next month and we have started this series for your top 200 MCQ questions based on different subjects. Now in this session, we are going to practice top 25 questions based on double fillers. So before this, we have covered error detection, close test, and now we are going to target double fillers. Now these are also very frequently asked in the exam and they are an integral part of your exam basis. So without any further ado, let's jump into the session. So guys, don't forget to like it and don't forget to subscribe to the channel if you're here for the first time. That is the least you can do for the efforts that we are putting in for you. So let's begin guys. But guys, if you're looking for a crash course or if you're looking for a designated course to prepare for your exam, we have just the thing for you. Now guys, the link for our courses are given in the description of the video, but I'll show you how you can just very easily access them. So guys, what you have to do is just go to your browser, any browser that you use. So go to your browser and just type edutap.in, edutap.in, and just press enter and you'll land on our home page and you'll see all the courses available to you here when you scroll down. So the first course, the first tab is for RBI Grade B itself. Click on this and you'll be redirected to our RBI Grade B courses. Now guys, you have your test series for phase 2 and you have your live crash course for phase 2, but this is a special crash course for your phase 1 as well as phase 2 requirement guys. Now in this we are going to cover phase 1 as well as phase 2. We'll have live classes for all the subjects, solved PYQs, chapter wise test and full length test would be there. So you can enroll in this crash course if you're starting out for your preparation. And guys, if you're looking to prepare designatedly for RBI Grade B exam and if you have just begun, this is a one-stop solution for you. Gold course. Now guys, in the gold course we are providing you live classes as well and pre-recorded concept classes, and beyond all that, concept notes, summary sheets, mock tests, current affairs magazine, solved PYQs, chapter wise tests, sectional test, and there are so many more things that we offer you. Full length test, current affair test, and guys, we are offering flat 70%, 75% discount on these courses, and the coupon code is RBI, capital RBI 75. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. So guys, let's now begin with the questions, and guys, don't miss out the video because in the end I'm also going to give you a homework question for this. So you have to solve that homework question and provide the correct answer in the comment section of the video. So let's begin. So guys, you'll have 30 seconds for every question. So how do we solve double fillers based questions guys? You read the complete sentence first without reading the options and make a context of the sentence, that what does the sentence imply, what does it convey to you. So once you understand that and you have your grammatical sense there, you will be able to eliminate the options and get to the right answer. So let's begin again guys. So this is first question in front of you. You have to choose which option would fill the two blanks given in the sentence. So let's read the question. The scientist's theory, though initially ridiculed, was later dashed by the academic community and became the dash of modern quantum mechanics. So the scientist theory, though means they are trying to give a contradiction. So there is going to be a contradiction in the sentence. So though is used for contradiction. दो का मतलब क्या होता है हिंदी में? हालांकि. हालांकि जो साइंटिस्ट की थ्योरी थी उसका शुरू में बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में जो कम्युनिटी थी, एकेडमिक कम्युनिटी, उन्होंने उसको मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ज़रूरी समझा, जो भी है. तो अभी ऑप्शन देखेंगे बट कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया. Sorry. So if you understand the context well, you will be able to now answer the question. So the scientist theory, though initially ridiculed, was later dashed by the academic community, was later rejected by. So once they've said ridiculed, मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ा दिया तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन में वो रिजेक्ट क्यों करेंगे उसको बाद में? Incorrect. Was validated by? Possible. Dismissed by? No. Why would they dismiss it once they've understood the importance of it? Debated by? Could be possible. Ignored by? Not possible. So guys, once you understand the context of the sentence, it becomes easy for you to solve such questions. So now let's see which is the right option, option B or option D. The scientist's theory, though initially ridiculed, was later validated by or debated by the academic community and became the cornerstone of modern quantum mechanics or catalyst of.
catalyst for could have been correct, but not catalyst of. So I think that's incorrect. The correct answer is option number B. The scientist's theory, though initially ridiculed, was later validated by the academic community and became the cornerstone, that means a pillar of modern quantum mechanics, that theory given by the scientist. So option B is the right answer in the context. So let's solve questions based on double fillers like this. So second question, guys, even after the minister's dash apology, the opposition continued to dash protests across the country. So even after means uske बावजूद भी, so again there is going to be a contradiction. So even after the minister's reluctant apology, formal apology, public apology, sincere apology, vague apology. Guys, we can eliminate two options right here, vague and reluctant. So if he apologized and the opposition continued to protest across the country, then it won't be a reluctant or a vague apology. It could be formal, it could be public, it could be sincere. Let's look at the second blank. So after the minister's dash apology, the opposition continued to stifle प्रोटेस्ट्स, ऑर्केस्ट्रेट प्रोटेस्ट और रिट्रीट, रिट्रीट होता है पीछे हट जाना. सो अगर वो पीछे हट गए तो फिर वो इवन आफ्टर का क्या लॉजिक है, तो ये भी गलत है. पब्लिक अपॉलॉजी और फॉर्मल अपॉलॉजी. स्टाइफल होता है किसी को मतलब छेड़ देना, परेशान कर देना, बट ऑर्केस्ट्रेट होता है जानबूझ के कुछ क्रिएट करना. सो आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड. सो इवन आफ्टर द मिनिस्टर्स पब्लिक अपॉलॉजी, द ऑपोजिशन कंटिन्यू टू ऑर्केस्ट्रेट. ऑर्केस्ट्रा होता है ना, जब जहाँ से सारे मिल के काम करते हैं. सो ऑर्केस्ट्रेट वही कोई नई चीज को ऑर्केस्ट्रेट कर देना, ठीक है, कि कोई नई प्रोटेस्ट को खड़ा कर देना, झूठे प्रोटेस्ट को जो ऑर्गेनिक नहीं है. सो इवन आफ्टर द मिनिस्टर्स पब्लिक अपॉलॉजी, द अपोजिशन कंटिन्यू टू ऑर्केस्ट्रेट प्रोटेस्ट्स अक्रॉस द कंट्री. सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. द नॉवलिस्ट्स राइटिंग स्टाइल इज बोथ डैश एंड इवोकेटिव. बोथ एंड कब लगते हैं गाइस, जब दो हम सेम सिमिलर नोशन की चीजों को कनेक्ट करते हैं, राइट. सो द नॉवलिस्ट राइटिंग स्टाइल इज बोथ डैश एंड एवोकेटिव, often dash readers with its lyrical prose. So both abstract and evocative possible, both terse is very difficult to understand and very boring, no. Fluid possible, archaic होता है पुराना, बहुत ही जो आउटडेटेड है, डजंट मेक सेंस. डिटैच्ड होता है जो जिसका कोई रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो अपने अलग ही है, तो डजंट मेक सेंस. सो वी कैन एलिमिनेट थ्री ऑप्शंस लाइक दिस. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद टू ऑप्शंस. द नॉवलिस्ट राइटिंग स्टाइल इज बोथ terse and evocative, both abstract and evocative, or both fluid and evocative, often overwhelming the readers or enchanting the readers. guys, abstract होता है जो अंदर छुपा होता है, राइट, और फ्लूइड होता है जो पानी की तरह बहता है. लेकिन ओवरवेलमिंग होता है जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ओवरवेलम हो जाते हो, मतलब बहुत ही जब किसी चीज़ की एक्सट्रीमिटी आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ, उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग. लेकिन इंचैंटिंग होता है किसी को मंत्र मुग्ध कर देना. सो आई थिंक दैट इज़ द राइट आंसर, कि द नॉवलिस्ट राइटिंग स्टाइल इज बोथ फ्लूइड एंड इवोकेटिव, ऑफन enchanting रीडर्स विद इट्स लिरिकल प्रोज, कि वो मंत्र मुग्ध कर देते हैं सुनने वालों को, उसकी राइटिंग स्टाइल इतना सुंदर है, राइट. पढ़ने वालों को, सॉरी सुनने वालों को कह रहा हूँ, तो इसका राइटिंग स्टाइल इतना फ्लूइड और एवोकेटिव है कि वो रीडर्स को, पढ़ने वालों को मंत्र मुग्ध कर देता है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. Despite heavy rainfall, the villagers dashed together and dashed the flood with remarkable resilience. तो despite the heavy rainfall मतलब बावजूद बहुत मूसलाधार बारिश होने के, द विलेजर्स डिजॉल्व टुगेदर. डिजॉल्व होता है किसी पार्टी को का खंडन कर दे, मतलब उसको खत्म, नल कर देना, वॉइड कर देना. हडल टुगेदर हो सकता है, हडल होता है इकट्ठा हो जाना. फ्लड टुगेदर मतलब इकट्ठा भाग खड़े हुए, तो फिर रेजिलियंस किस बात का हुआ, तो नॉट करेक्ट. सरेंडर टुगेदर, सरेंडर क्यों करेंगे यार. पैनिक टुगेदर नहीं, यहीं से एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शंस. डिस्पाइट द हैवी रेनफॉल, द विलेजर्स हडल टुगेदर एंड एंड्योर्ड. एंड्योर्ड होता है किसी चीज का डट के सामना करना, ठीक है. एंड एंड्योर्ड द फ्लड विद रिमार्केबल रेजिलियंस. ऑप्शन बी was the right answer. So despite heavy rainfall, the villagers huddled together and endured the flood with remarkable resilience. So
पहले ऑप्शन सही, पहले ब्लैंक से ही सारे सॉल्व हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द डिबेट ग्रू मोर हीटेड, कि जैसे जैसे डिबेट और गर्म होती गई, द मॉडरेटर अटेम्प्टेड टू डैश द कन्वर्सेशन एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ डैश। सो एज द डिबेट ग्रू मोर हीटेड, द मॉडरेटर, कि जैसे जैसे डिबेट और गर्म 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 होती गई, द मॉडरेटर अटेम्प्टेड टू साइडलाइन द कॉन्वर्सेशन, sideline the conversation and restore a sense of neutrality, escalate the attempted to escalate the conversation, जब वो पहले ही गर्म हो चुकी है तो फिर मॉडरेटर क्यों एस्केलेट करेगा उसको? मॉडरेटर का काम होता है दोनों को ठंडा रखना। हाईजैक द कॉन्वर्सेशन नहीं, स्टीयर हो सकता है, स्टीयर होता है एक डायरेक्शन में उसको मोड़ देना। डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन विद अर्जेंसी नहीं। तो यहाँ से 3 एलिमिनेट हो गए अपने, बचे ऑप्शन ए या डी। एज द डिबेट ग्रू मोर हीटेड, द मॉडरेटर अटेम्प्टेड टू साइड लाइन द कॉन्वर्सेशन और स्टीयर द कॉन्वर्सेशन एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी या डेकोरम नहीं, डेकोरम इज द राइट वर्ड। सो उसने क्या बोला कि जैसे डिबेट, जैसे ही डिबेट थोड़ी भड़क गई, जैसे टीवी डिबेट्स में देखते हैं ना न्यूज़ चैनल पे, आप चिल्लाने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, मारने को हो जाते हैं एक दूसरे को, गाली गलौज करने लग जाते हैं। सो उस सेंस में फिर मॉडरेटर जो होता है, जो बीच में जो उनको मॉडरेट कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो कॉन्वर्सेशन को किसी दूसरी डायरेक्शन में स्टीयर करता है। स्टीयर मतलब किसी और दूसरी दिशा में लेके जाना, एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ डेकोरम। डेकोरम होता है डिसिप्लिन, कि भाई शांत रहो, चिल्लाना चीखना नहीं है। सो ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द कमिटीज डिसीजन वॉज नीदर डैश नॉर लीगली डैश, स्पार्किंग कंफ्यूजन एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। कि कमेटी का डिसीजन जो था ना ये था और ना लीगली ये था, जिससे हर जगह से कंफ्यूजन और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा उसे। सो द कमेटीज डिसीजन वाज नीदर यूनानिमस नॉर लीगली बाइंडिंग, पॉसिबल नीदर प्रेडिक्टेबल नॉर लीगली एक्सेप्टेबल, ओके पॉसिबल नीदर एथिकल नॉर लीगली फाइनल। डिसीजन होगा तो फिर वो फाइनल क्यों नहीं होगा, फिर वो गलत है। नीदर अब्रप्ट नॉर लीगली टेनेबल, डजंट मेक सेंस। नीदर डेमोक्रेटिक नॉर लीगली एप्लीकेबल, नहीं गई, डेमोक्रेटिक का कोई लॉजिक नहीं है। तो द कमेटीज डिसीजन वाज नीदर यूनानिमस नॉर लीगली बाइंडिंग या नीदर प्रेडिक्टेबल नॉर लीगली एक्सेप्टेबल। आई थिंक लीगली बाइंडिंग होता है कि जो लीगली खड़ा ना हो पाए, कि ना तो कमेटी का डिसीजन यूनानिमस था, मतलब सबने एक तरफ होकर डिसीजन नहीं लिया था, कि लोगों के मतलब आधे कमेटी मेंबर्स इधर थे आधे उधर थे, या कुछ इधर थे काफ़ी उधर थे, और लीगली बाइंडिंग भी नहीं है डिसीजन। ये लीगली बाइंडिंग मतलब लीगली जो लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब उसके सामने वो गलत ठहराया जाएगा। सो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द कमिटीज डिसीजन वाज नीदर यूनानिमस नॉर लीगली बाइंडिंग, स्पार्किंग कंफ्यूजन एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। So option A is the right answer. चलिए next question guys. The team's underdog victory was seen as a dash moment that could dash the future of the league. So the team's underdog victory, underdog मतलब जो कमजोर टीम होती है लेकिन वो भी जीत जाती है, जब कई बार होता है ना ऐसा कि छोटी टीम जीत जाए, पाकिस्तान की या बांग्लादेश की टीम जीत जाए कभी कभी, तो यूँ लगता है यार ये तो अंडरडॉग निकले। तो द टीम्स अंडरडॉग विक्ट्री वॉज सीन एज ए डैश मोमेंट, वॉज सीन एज ए नेग्लिजिबल मोमेंट। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर मूवमेंट है, कैसे बात कर रहे हो, बड़ा मूवमेंट होता है जब कोई छोटी टीम जीत जाती है, राइट। वाज सीन एज डेफिनेटिव मूवमेंट दैट कुड डैश ऑब्सक्योर द फ्यूचर ऑफ द लीग, नहीं। डेफिनेटिव हो सकता है लेकिन ऑब्सक्योर होता है कंफ्यूज कर देना, लेकिन वो लीग को फ्यूचर को कंफ्यूज क्यों करेगा फिर। ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रीशेप पॉसिबल, टेम्परेरी मूवमेंट डजंट मेक सेंस, फॉरगॉटन मूवमेंट डजंट मेक सेंस। आंसर मिल गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टीम्स अंडरडॉग विक्ट्री वाज सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट, के बदलाव ले आया जो टीम में, दैट कुड रीशेप द फ्यूचर ऑफ द लीग, जिसने लीग का फ्यूचर ही बदल के रख दिया। जैसे पिछले साल आरसीबी जीती आईपीएल में, तो इस साल आप देख रहे हो बिल्कुल नई नई टीम्स जीत रही हैं। कैसे आप भी आईपीएल देखते हो क्या? ऑब्वियसली यार सभी देखते हैं इंडिया में, कौन नहीं, मतलब हाईलाइट्स तो देख ही लेते हैं, राइट। तो अब देख रहे हैं बड़ी बड़ी टीम्स आ रही है। पहले मतलब कुछ सेलेक्टेड टीम्स जीतती थी, कोई 5 बार टाइटल जीता है, कोई 4 बार, कोई 3 बार, लेकिन अब की बार पिछले साल तो देखने को मिला कोई नई टीम, छोटी टीम जो पहले मानी जाती थी वो जीत रही हैं। जैसे अब की बार पंजाब जीत रही है, मतलब अच्छा खेल रही है, हैदराबाद खेल रही है, आरसीबी अच्छा खेल रही है, दिल्ली अच्छा खेल रही है, और गुजरात अच्छा खेल रही है कंपैरेटिवली। सो
ये उसी का एग्जांपल था। द टीम्स अंडरडॉग विक्ट्री के पिछली बार जो अंडरडॉग टीम जीत गई, इट वाज सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट दैट कुड रीशेप द फ्यूचर ऑफ द लीग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मेनी बिलीव द रिफॉर्म्स वुड डैश इकोनॉमिक ग्रोथ बट दे इंस्टेड लेड टू अ पीरियड ऑफ फिस्कल डैश। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है कि बहुतों का ये मानना था कि रिफॉर्म से इकोनॉमिक ग्रोथ का ये होगा, लेकिन उसकी बजाय एक कैसा पीरियड आ गया, फिस्कल इसका पीरियड आ गया। तो देखते हैं। सो मेनी बिलीव द रिफॉर्म्स वुड हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ बट दे इंस्टेड लेड टू अ पीरियड ऑफ फिस्कल सरप्लस। कि रिफॉर्म्स से इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर होगी, रिफॉर्म्स क्यों लाए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करने के लिए, डजंट मेक सेंस। एम्पलीफाई इकोनॉमिक ग्रोथ बट अबंडेंस, फिस्कल अबंडेंस, ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एम्पलीफाई होगी तो लेकिन इंस्टेड की बजाय फिर अबंडेंस कैसे आ जाएगा। स्टैग्नेट इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी गलत है। स्टैग्नेट तो होता है एक ही जगह कहीं पे रोक देना उसको। स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बट दे इंस्टेड लेड टू पीरियड ऑफ फिस्कल ऑस्टेरिटी, अमीरी। पैरालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ बट, अच्छा ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी ही हो रहे हैं सारे। फिर रुको गाइस, मैं सोच रहा था कि बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं ये तो सारे ही कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहे हैं। दोबारा देखते हैं। मैनी बिलीव दैट रिफॉर्म्स वुड एम्पलीफाई इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेट पीरियड ऑफ फिस्कल बूम। देखो अब एम्पलीफायर अबंडेंस तो नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, स्टिमुलेट और ऑस्टेरिटी, क्योंकि ये दोनों सेम बात कर रहे हैं। हमें यहाँ देनी है कॉन्ट्रडिक्शन। तो इट कुड बी ए, सी और डी। हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेट इकोनॉमिक ग्रोथ और पैरालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ बट दे इंस्टेड लेड टू अ पीरियड ऑफ फिस्कल सरप्लस, फिस्कल बूम या फिस्कल प्रोस्पेरिटी। आई थिंक पैरालाइज तो नहीं होगा, पैरालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई सेंस नहीं है गाइस। स्टैग्नेट या हिंडर, स्टैग्नेट भी वही होता है रोक देना, हिंडर मतलब रुकावट करना। बट फिस्कल बूम या फिस्कल सरप्लस, आई थिंक फिस्कल सरप्लस इज द राइट वर्ड। इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड यूज होना चाहिए। बूम तो एकदम से होता है कि छप्पर फाड़ के मतलब ऊपर चढ़ गई। लेकिन मैनी बिलीव द रिफॉर्म्स वुड हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ बट दे इंस्टेड लेड टू अ पीरियड ऑफ फिस्कल सरप्लस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिल्म मेकर्स लेटेस्ट वर्क इज अ डैश ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिक्शन, ब्रिलियंटली डैश द बाउंड्रीज ऑफ जॉनरा, ऑफ द जॉनर जो हम बोलते हैं। तो जो अभी नई उसने फिल्म, लेटेस्ट फिल्म आई है ना उस फिल्म मेकर की, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिक्शन को मिला के जोड़ के बनाई गई है बड़े अच्छे से, जो जॉनरा की बाउंड्रीज को ब्रेक करती है, जो भी करते थे। जैसे धुरंधर आई थी अभी, अच्छी फिल्म थी। यस गाइस, तो उसने हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिक्शन को जोड़ के एक स्टोरी क्रिएट की थी। सो द फिल्म मेकर्स लेटेस्ट वर्क इज अ डैश ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इज अ डिविएशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिक्शन, नो। मिक्सचर हो सकता है, क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं, सटायर, सटायर होता है मजाक उड़ाना, एंड री इन्फोर्सिंग नहीं, डजंट मेक सेंस। ड्रामेटाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो बी और ई में से देखते हैं। द फिल्म मेकर्स लेटेस्ट वर्क इज अ मिक्सचर ऑफ या ड्रामेटाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिक्शन, ब्रिलियंटली ब्लरिंग द बाउंड्रीज और ब्रिलियंटली डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द जॉनरा। गाइज यहाँ पे देखो दो चीजों की बात हो रही है, तो ड्रामेटाइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होगा, मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स एंड फिक्शन होगा। एंड जब जॉनर एक बना हुआ है तो उसको बाउंड्री को डिफाइन क्या करोगे, डिफाइन तो पहली बार किया जाता है, या जो सबसे मेन चीज़ होती है वो डिफाइन करती है। यहाँ पे ब्लर करना होगा कि उसने जॉनर की, मतलब एक होता है फिक्शन, एक होता है हिस्टोरिकल। लेकिन एक ऐसी मूवी है जिसने हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिक्शन दोनों को मिला के, मिक्स करके एक ऐसी मूवी बना दी जो ना तो हिस्टोरिकल लगे, डॉक्यूमेंट्री लगे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, ना ही फिक्शन लगे, राइट। तो और उसने फिर पूरी जॉनरा की जो बाउंड्री है उसको ब्लर कर दिया, मतलब बहुत धुंधली कर दी कि अब पता नहीं किस कैटेगरी में रखें इस फिल्म को। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन बना है तो धुरंधर के ऊपर। सो ऑप्शन बी इज द राइट वर्ड। द फिल्म मेकर्स लेटेस्ट वर्क इज अ मिक्सचर ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिक्शन, ब्रिलियंटली ब्लरिंग द बाउंड्रीज ऑफ जॉनरा। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन। While the project began with great dash, unforeseen challenges quickly dash its momentum. While the project began with great dash, अनफॉर्सिन चैलेंजेस, तो मतलब पहले अच्छे से चला लेकिन बाद में चैलेंजेस आने से उसका मोमेंटम टूट गया है, रुक गया। तो पहले अच्छा चला। स्केप्टिसिज्म गलत, नेगेटिव वर्ड है। एम्बिशन हो सकता है, डिसऑर्डर नहीं। कॉन्फिडेंस हो सकता है, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी नहीं। तो दो ऑप्शन बच गए, एम्बिशन या कॉन्फिडेंस। सो वाइल द प्रोजेक्ट बिगैन विद ग्रेट एम्बिशन या ग्रेट कॉन्फिडेंस, अनफॉर्सिन challenges quickly halted और propelled। अनफॉर्सिन challenges propel थोड़ी करेंगे, propel होता है आगे बढ़ाना। तो we've got our answer with the project when the while the project began with great ambition,
Unforeseen challenges quickly halted its momentum. So option B is the correct answer. चलिए guys, next question पे चलते हैं. Although the initiative was launched with dash intentions, it eventually became a tool for political dash. कि हालांकि ये इनिशिएटिव शुरू शुरू में किस लिए लॉन्च किया गया था, कुछ अच्छी इंटेंशन से लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में सिर्फ ये क्या बन के रह गया, एक पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा का टूल बन के रह गया, ऐसा कुछ बोल रहा है वो, तो कॉन्ट्रडिक्शन है मतलब. सो ऑल्दो द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड विद मलिशियस, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा फिर, मलिशियस तो खराब इंटेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छी बात होनी है. स्ट्रेटेजिक इंटेंशन पॉसिबल, नॉबल इंटेंशन पॉसिबल, डूबियस होता है धोखा देने वाली नहीं, रेडिकल भड़की हुई नहीं. सो स्ट्रेटेजिक या नोबल दो ही ऑप्शन पॉसिबल है. ऑल्दो द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड विद स्ट्रेटेजिक और नोबल इंटेंशंस, इट इवेंचुअली बिकेम अ टूल फॉर पॉलिटिकल liberation. Liberation होता है आज़ादी, doesn't make sense. Political liberation या political manipulation. So I think option C is the right word. Although the initiative was launched with noble intentions, it eventually became a tool for political manipulation. So option C was correct. चलिए next question. The scholar was admired for her dash mind and her ability to dash even the most obscure text. कि स्कॉलर को बहुत सराहना की गई स्कॉलर की, उसके अच्छे दिमाग के लिए और उसकी एबिलिटी, जिसकी वजह से वो बड़े ही कंफ्यूजिंग टेक्स्ट को भी क्या कर पाती थी, मतलब एक्सप्लेन या डी कोड जो भी है, तो देखते हैं. द स्कॉलर वॉज एडमायर्ड फॉर हर मंडेन, मंडेन मतलब डे टू डे लाइफ का जो रोजमर्रा का होता है, नहीं, क्रिटिकल माइंड, एजाइल माइंड. क्रिटिकल तो जो दूसरों में कमियां निकालता है, एजाइल माइंड हो सकता है, रिजिड माइंड, रिजिड होता है मतलब जो बड़ा कठोर सख्त होता है, पैसिव माइंड नहीं, जो सुस्त पड़ा हो नहीं. तो एजाइल और रिजिड इन दोनों में से ही है. मेरे ख्याल से सी इज द बेटर ऑप्शन, बट देखते हैं. द स्कॉलर वाज एडमायर्ड फॉर हर एजाइल माइंड एंड हर एबिलिटी टू डिसाइफर, मतलब डिकोड करना, या एनोटेट, एनोटेट मतलब उस पर कुछ लिख देना या उसको एक्सप्लेन कर देना. तो रिजिड माइंड नहीं, एजाइल. एजाइल क्या होता है guys? बड़ा ही शार्प, बड़ा ही जिसको हम बोलते हैं ना, बड़ा ही तेज दिमाग, तो एजाइल माइंड एंड हर एबिलिटी टू डिसाइफर इवन द मोस्ट obscure text. So option C is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द इंटरनेशनल समिट एम टू डैश डिप्लोमेटिक टाइज एंड डैश डायलॉग ऑन क्लाइमेट एक्शन. द इंटरनेशनल समिट एम टू, इंटरनेशनल समिट है तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, तो एम टू डैश डिप्लोमेटिक टाइज, सेवर मतलब तोड़ देना डिप्लोमेटिक टाइज को, फॉस्टर बनाए रखना, यस, इग्नोर नहीं, रिस्टोर हो सकता है, मैनिपुलेट करना टाइज को नहीं, फॉस्टर या रिस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज एंड फैसिलिटेट डायलॉग या रिस्ट्रिक्ट डायलॉग नहीं गाइस. तो आई थिंक यू कैन एलिमिनेट गाइस. एलिमिनेशन मेथड समझ रहे हो आप कैसे करते हैं, कि कॉन्टेक्स्ट को, लॉजिक को और सेंस को समझ के और उस बेसिस पे अपने ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो एंड यू विल गेट योर आंसर. सबसे लॉजिकल और रैशनल तरीका है ये ऐसे क्वेश्चंस में अपने आंसर तक पहुंचने का, ठीक है. सॉरी गाइस, चलिए. तो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द इंटरनेशनल समिट एम टू फॉस्टर डिप्लोमेटिक टाइज एंड फैसिलिटेट डायलॉग ऑन क्लाइमेट एक्शन. चलिए next question guys, question number 14. The CEO's resignation was viewed as a dash move designed to dash shareholder dissatisfaction. Okay, कि सीईओ का जो रेजिग्नेशन था उसको कैसे देखा गया, एक ऐसे मूव की तरह देखा गया कि शेयर होल्डर डिससेटिस्फैक्शन को रोका जा सके. कुछ कंपनी घोटाले में आ गई या कंपनी डूब गई तो सीईओ को रिजाइन करना पड़ जाता. तो द सीईओ's रेजिग्नेशन वाज व्यूड एज अ टैक्टिकल मूव, हो सकता है रेकलेस मूव, डिजाइन टू, डिजाइन किया गया तो रेकलेस थोड़ी होगा, रेकलेस तो होता है जो बिना सोचे समझे किया गया. सिंबॉलिक मूव हो सकता है, रिलक्टेंट मूव मतलब जो मन नहीं हो रहा करने का, टू शेयर, टू सेलिब्रेट शेयर होल्डर डिससेटिस्फैक्शन नहीं, एग्रेसिव मूव टू नलीफाई नहीं. तो आई थिंक टैक्टिकल या सिंबॉलिक मूव डिजाइन टू डिफ्लेक्ट शेयर होल्डर डिससेटिस्फैक्शन, या the CEO's resignation was viewed as a symbolic move designed to intensify dissatisfaction को intensify को क्यों करेगा, डिफ्लेक्ट करेंगे मतलब उसको इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि भाई कंपनी डूब गई है तो शेयर होल्डर चिल्लाएंगे, तो उनको उनकी डिससेटिस्फैक्शन को डिफ्लेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या करवाया, सीईओ से रेजिग्नेशन दिलवा दिया. सो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द आर्टिस्ट्स एक्सेंट्रिक लाइफस्टाइल often dash attention away from her work which was far more dash than critics acknowledged. कि उसका जो एक्सेंट्रिक मतलब उसका जो बड़ा ही अजीब सा लाइफस्टाइल है, मतलब जो उसका मन करे वो करने वाला, एक्सेंट्रिक मतलब जो मन में आए वो कर दिया. सो द आर्टिस्ट का जो एक्सेंट्रिक लाइफस्टाइल है
वो उसके काम से ज़्यादा उसका वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, विच वॉज फार मोर डैश देन क्रिटिक्स एक्नॉलेज, जिनको क्रिटिक्स ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया इसके काम को. सो द आर्टिस्ट एक्सेंट्रिक लाइफस्टाइल ऑफन डैश शिफ्टेड अटेंशन अवे हो सकता है, ड्रू अटेंशन अवे हो सकता है, डाइवर्टेड अटेंशन अवे हो सकता है. नहीं, डाइवर्ट का मतलब ही है, तो अवे नहीं हो सकता, डाइवर्ट अवे नहीं बोलते, डाइवर्ट अकेला यूज होता है. इनवाइटेड अटेंशन अवे नहीं हो सकता, कमांडेड डजंट मेक सेंस. तो शिफ्टेड या ड्रू, यही दोनों पॉसिबल है. तो देखते हैं सही क्या है. द आर्टिस्ट एक्सेंट्रिक लाइफस्टाइल ऑफन डैश अटेंशन, शिफ्टेड अटेंशन या ड्रू अटेंशन अवे फ्रॉम हर वर्क विच वॉज फार मोर सुपरफिशियल, मतलब जो ऊपर ऊपर से किया गया, या कन्वेंशनल. नहीं, डाइवर्टेड भी ठीक लग रहा है. फिर कन्वेंशनल होता है पुराने तरह से किया गया, सुपरफिशियल होता है ऊपर ऊपर से. नहीं गई, तो आई थिंक फिर ऑप्शन. बट यार जहां तक मुझे ग्रामेटिकल सेंस में मुझे लग रहा है डाइवर्ट के साथ अवे यूज नहीं होता. गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं एक बार, लेट मी कंफर्म इट अगेन. क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि एक बार डाइवर्ट हो गया तो फिर उसके बाद अवे क्यों बोलेंगे. अच्छा, डाइवर्ट अवे इज अ फ्रेजल वर्ब. अच्छा, डाइवर्ट अवे, ठीक है, इसका मतलब किसी को वही, हाँ. नहीं ठीक है गाइस, डाइवर्ट अवे पॉसिबल है वो. मैं ग्रामेटिकल सेंस में देख रहा था. जैसे हम बोलते हैं ना कुछ, डिफ्लेक्ट अवे, डिपार्ट अवे, डिवाइड अवे, ये नहीं करते हम. क्योंकि इनमें, क्योंकि डिवाइड या डिपार्ट जिनका मतलब डी ई वर्ड होता है ना, वो उसका पहले ही मतलब, या डी आई वर्ड होता है उसका मतलब पहले ही क्या होता है, दोनों में, दो में अलग अलग कर देना. तो हम यूजुअली नहीं करते, बट डाइवर्ट अवे होता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द आर्टिस्ट्स एक्सेंट्रिक लाइफस्टाइल ऑफन डाइवर्टेड अटेंशन अवे फ्रॉम हर वर्क विच वॉज फार मोर प्रोफाउंड. प्रोफाउंड होता है डीप, जिसमें बहुत गहराई थी. तो विच वॉज फार मोर प्रोफाउंड देन क्रिटिक्स एक्नॉलेज. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यस गाइस, अब यहाँ पे क्या है. द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन टू डैश इंटरेस्ट रेट्स dash the economy as businesses and consumers adjusted to the new borrowing costs. The central bank's decision to dash interest rates dash the economy as businesses and consumers adjusted to new borrowing costs. कि नई borrowing cost आ गई. So the central bank's decision to slash interest rates stimulated the economy, hike the interest rate, destabilize the economy, maintain the interest rates, stabilize the economy, reduce the interest rates to contract the economy, or increase the interest rate to revitalize the economy as businesses and consumers adjusted to the new borrowing costs. कि जो एडजस्ट कर रहे थे न्यू बोरोइंग कॉस्ट के, तो वो आई थिंक, हाँ, तो फिर वो स्लैश तो नहीं करेंगे. इंटरेस्ट रेट बढ़े होंगे, मेंटेन भी नहीं होंगे, रिड्यूस भी नहीं होंगे, इंक्रीज हो सकता है. तो हाइक या इंक्रीज ही होंगे इंटरेस्ट रेट, तभी तो वो मतलब नई बोरोइंग कॉस्ट से एडजस्ट कर रहे हैं. सो हाइक या इंक्रीज ही हो सकता है. सेकंड ब्लैंक देखते हैं. द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन टू हाइक और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स डीस्टेबलाइज द इकोनॉमी और रिवाइटलाइज. यार इंटरेस्ट रेट हाई करके रिवाइटलाइज कैसे होगी यार. आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन टू हाइक इंटरेस्ट रेट्स destabilize the economy, जिससे इकोनॉमी हिल गई, as businesses and consumers adjusted to the new borrowing cost, क्योंकि सबको नई borrowing cost से अब परेशान होना पड़ रहा था. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन. The sudden dash in oil prices dashed the stock market, causing widespread panic among investors. Okay, so the sudden dash in oil prices, the sudden dash the stock market, causing widespread panic है ना, तो मतलब ऑब्वियसली ऑयल प्राइस बढ़े होंगे, सर्ज हो सकता है, डिक्लाइन तो नहीं होगा, स्टेबलाइजेशन में भी कोई पैनिक नहीं होगा, फ्लक्चुएशन में हो सकता है, रिकवरी इन ऑयल प्राइसेस डजंट मेक सेंस. सो तीन ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गए. सर्ज या फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइसेस. बॉयड बॉयड होता है मतलब उसको पानी पे तैराए रखना, मतलब उसको अफ्लोट रखना, स्टॉक मार्केट को अपनी जगह खड़े रखना. लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट तो गिरेगी. सो कंफ्यूज द स्टॉक मार्केट. यस, दैट्स द राइट आंसर. द सडन फ्लक्चुएशन इन, जैसे अभी हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया वॉर के बीच में एकदम से $100 $120 क्रॉस कर गया पर बैरल जो ऑयल है. सो द सडन फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइसेस कंफ्यूज द स्टॉक मार्केट, causing widespread panic among investors. So option D was your correct answer. चलिए guys, next question. The dash of digital currencies dash traditional banking systems, forcing them to adapt to new technologies. तो डैश ऑफ डिजिटल करेंसीज डैश ट्रेडिशनल बैंकिंग, जो पुराना बैंकिंग सिस्टम था उसको मजबूर कर दिया डिजिटल करेंसी ने टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, की नई टेक्नोलॉजी को तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा. पहले जैसे लेजर पे
खाते चलते थे, लेकिन अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया. सो द डिक्लाइन ऑफ डिजिटल करेंसीज नो, राइज ऑफ यस, स्टेग्नेशन ऑफ एक ही जगह खड़े हो जाना नहीं, रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी स्टेबलाइज नहीं, द बैन ऑफ डिजिटल करेंसीज, यहीं से आंसर मिल गया. द राइज ऑफ डिजिटल करेंसीज डिसरप्टेड traditional banking systems, forcing them to adapt to new technologies. So option B was your correct answer. बाकी सारे ही opposite थे, तो आराम से eliminate हो रहे थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द बैंक्स डैश अप्रोच टू लेंडिंग, मतलब लोन देना, पैसे देना. सो द बैंक्स डैश अप्रोच टू लेंडिंग डैश इट्स रेपुटेशन एज मेनी कस्टमर्स डिफॉल्टेड ऑन लोन्स, क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब लोन नहीं चुकाया, तो उसको बैंक की क्या हुई, रेपुटेशन खराब हो गई. सो द बैंक्स कॉशियस अप्रोच टू लेंडिंग इनहैंस्ड रेपुटेशन, नो. रेकलेस अप्रोच टू लेंडिंग टार्निश्ड रेपुटेशन, यस, धब्बा लग गया. कंजर्वेटिव अप्रोच टू रिस्टोर्ड रेपुटेशन, क्योंकि कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया इसलिए उनकी रेपुटेशन रिस्टोर हो गई, नो. द प्रूडेंट अप्रोच हो ही नहीं, प्रूडेंट होता है समझदार अप्रोच. एग्रेसिव अप्रोच टू लेंडिंग हो सकता है, इंप्रूव्ड नहीं हो सकता गाइस, फिर रेपुटेशन इंप्रूव कैसे होगी. सो एक ही ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे, ऑप्शन बी. द बैंक्स रेकलेस अप्रोच टू लेंडिंग टार्निश्ड its reputation as many customers defaulted on loans, कि बैंक ने जो रेकलेस अप्रोच ली पैसे उधार मतलब लोन पे देने की, इससे उनकी रेपुटेशन पे धब्बा लगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने क्या कर दिया, लोन पे डिफॉल्ट कर गए वो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. द डैश इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स डैश कंज्यूमर स्पेंडिंग लीडिंग टू अ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ. So the dash in unemployment rates dash consumer spending leading to a slow down. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े होंगे तभी. So the decrease in unemployment rate boosted consumer spending? नहीं. The rise in unemployment rates curtailed consumer spending? Yes. The stabilization in unemployment rates maintained consumer spending? फिर से स्लो डाउन क्यों आएगा. The fluctuation in unemployment rates increased consumer spending? उससे इंक्रीज क्यों होगी consumer spending, कम होगी. जब नौकरी नहीं होगी तो पैसे कम खर्चेंगे या ज़्यादा खर्चेंगे लोग, कम खर्चेंगे, राइट. सो स्टिमुलेटेड रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टिमुलेटेड द कंज्यूमर, नहीं. कर एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी. द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स curtailed consumer spending, उसको कम कर दिया, कट के थोड़ा कर दिया. So the rise in unemployment rates curtailed consumer spending leading to a slowdown in economic growth. So option B is your correct answer. ठीक है. चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. द गवर्नमेंट्स डैश टैक्स रिफॉर्म्स डैश स्मॉल बिजनेसेस allowing them to reinvest in their operations. मतलब अगर वो री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अपने ऑपरेशंस में, अपने बिजनेस में, तो मतलब उनको फायदा हुआ होगा स्मॉल बिजनेसेस को. सो द गवर्नमेंट्स बर्डनसम टैक्स रिफॉर्म्स, नहीं. मतलब बर्डनसम मतलब बोझ बोझ वाले. प्रोग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म्स हो सकता है. रिग्रेसिव मतलब जो पुराने पीछे ले जाते हैं आपको, नहीं. इक्विटेबल हो सकता है, सबके लिए बराबर है. और कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स क्यों होंगे, कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग होता है. सो द गवर्नमेंट्स प्रोग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म्स बेनिफिटेड स्मॉल बिजनेसेस और द गवर्नमेंट्स इक्विटेबल टैक्स रिफॉर्म्स सपोर्टेड स्मॉल बिजनेसेस. सपोर्ट करेंगे इक्विटेबल से. इक्विटेबल टैक्स रिफॉर्म क्या होता है गाइस, जो सबके लिए बराबर हो, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी. अगर वो सबके लिए बराबर है तो फिर उसमें फिर गरीबों का फायदा क्या. अगर सबके लिए सेम ही है तो या तो गरीबों का फायदा हो रहा है तो अमीरों का भी फायदा ही होगा, राइट. अगर गरीब बिजनेस, छोटे बिजनेसेस का अगर फायदा हो रहा है तो इसका मतलब, और इक्विटेबल टैक्स है मतलब सबके लिए सेम है, तो बड़ों का भी फायदा हो रहा होगा. लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो री इन्वेस्ट कर पा रहे तो उनको बेनिफिट मिला होगा तभी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है कि द गवर्नमेंट्स प्रोग्रेसिव के जो नए तरह के प्रोग्रेसिव नए तरह के टैक्स रिफॉर्म्स लाई है सरकार, उससे स्मॉल बिजनेसेस को बहुत फायदा हुआ है, जिसकी वजह से वो पैसा अब अपने ऑपरेशन में री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल बैंक्स डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डैश द करेंसी स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द क्राइसिस. द सेंट्रल बैंक्स डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डैश द करेंसी स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द क्राइसिस, कि सेंट्रल बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी वजह से क्राइसिस में कंट्री की करेंसी स्टेबल रह पाती है. तो डिप्लीशन of undermined the currency stability. The central bank's depletion of foreign accumulation ऑफ होगा, रिडक्शन नहीं. डिप्लीशन ऑफ फिर क्राइसिस में अंडरमाइन क्यों होगा, फिर वो स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेंटेन द करेंसी स्टेबिलिटी पॉसिबल. चलो इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज थ्रेटन द स्टेबिलिटी, नहीं.
तो बी या डी, मुझे बी लग रहा है बट देख लेते हैं। द सेंट्रल बैंक्स एक्यूमुलेशन या स्टेबलाइजेशन, गाइस फॉरेन करेंसी एक्यूमुलेट की जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं हमारे पास इतने बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व्स है। सो द सेंट्रल बैंक्स एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ensured the currency stability during the crisis. Option B is your correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द डैश ऑफ द हाउसिंग मार्केट डैश द ओवरऑल इकोनॉमी एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी slowed down. So the dash of the housing market dash the overall economy as construction activity slowed down. So the construction activity slowed down होगी तो फिर फायदा तो नहीं हुआ होगा। सो द बूम ऑफ द हाउसिंग मार्केट रिवाइटलाइज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो डाउन होगी नहीं, स्लम्प हो सकता है, रिकवरी नहीं, स्टैग्नेशन हो सकता है, ग्रोथ नहीं। दो ही ऑप्शन बचते हैं, द स्लम्प या स्टैग्नेशन। सो द स्लम्प ऑफ या द स्टैग्नेशन ऑफ द हाउसिंग मार्केट इम्पैक्टेड द ओवरऑल इकोनॉमी या स्टेबलाइज द ओवरऑल इकोनॉमी एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो डाउन। स्टेबलाइज होगी तो फिर स्लो डाउन क्यों होगी, इम्पैक्ट करेगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द स्लम्प, स्लम्प मतलब गिरावट जो आई है हाउसिंग मार्केट में, जैसे चाइना में देखने को मिल रही है अभी, राइट, एवरग्रैंड और पता नहीं कितनी सारी वो है, बड़ी बड़ी मतलब अल्टीमेट बड़ी कंपनीज डूबने वाली हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द स्लम्प। सो द स्लम्प ऑफ द हाउसिंग मार्केट impacted the overall economy as construction activity slowed down. So option B is your correct answer guys. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द डैश ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस डैश इन्वेस्टर ट्रस्ट लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक प्राइसेस में डिक्लाइन आया है तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूटा होगा, बढ़ा तो नहीं होगा। सो द इंप्रूवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्टोर्ड नहीं, डिटोरेशन इरोडेड यस, स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन्ड इन ट्रस्ट नहीं, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेंथन ट्रस्ट नहीं, द नेग्लेक्ट हो सकता है, द नेग्लेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनहांस द इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं। कट जाते हैं सारे ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है, डिटेरियोरेशन, द डिटेरियोरेशन ऑफ मतलब खराब हो जाने को बोलते हैं डिटेरियोरेशन। सो द डिटेरियोरेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इरोडेड इन्वेस्टर ट्रस्ट लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस। ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, द डैश ऑफ द बैंकिंग सेक्टर डैश द गवर्नमेंट टू इंजेक्ट कैपिटल इनटू स्ट्रगलिंग इंस्टीट्यूशंस। कि अगर स्ट्रगलिंग मतलब जो जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर कैपिटल मतलब उनको पैसा इंजेक्ट करना पड़ा सरकार को, तो कुछ तो खराब हुआ होगा। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर अलाउड द गवर्नमेंट टू इंजेक्ट कैपिटल पॉसिबल। अच्छा, स्टेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर में, फिर वो स्ट्रगलिंग इंस्टीट्यूशन क्यों है फिर वो, नहीं, द क्राइसिस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर फोर्स द गवर्नमेंट टू इंजेक्ट कैपिटल यस। द ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर नहीं, रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन क्या होगा, रिकवरी ऑफ द, अगेन सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फिर से बी ऑप्शन करेक्ट है। द क्राइसिस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर फोर्स द गवर्नमेंट, उसने मजबूर कर दिया, फोर्स द गवर्नमेंट टू इंजेक्ट कैपिटल इनटू स्ट्रगलिंग इंस्टीट्यूशन। सो ऑप्शन बी अगेन इज योर करेक्ट आंसर। के जो बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आया उसकी वजह से मजबूर हो गई सरकार, फोर्स हो गई कि उनको स्ट्रगलिंग इंस्टीट्यूशंस में पैसे इंजेक्ट करने पड़े। तो चलिए गाइज, ये थे आपके डबल फिलर्स के क्वेश्चन और ये तरीका कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। और जाने से पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, द डैश ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स डैश द यूज ऑफ कैश ट्रांसफॉर्मिंग द फाइनेंशियल लैंडस्केप। बताइए गाइज कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा, ए बी सी डी या ई। और मुझे ऑप्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन ज़रूर बताइएगा, आपको पता चलेगा आप ठीक सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, मतलब आप ठीक प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वी विल कीप ऑन कमिंग अप विद मोर सच सेशंस। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। सो गाइस, जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में एक बार बता देता हूँ। दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो गाइस आरबीआई के लिए, तो हम क्या क्या कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सब एक बार जान लो। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है, वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं इजी तरीका बता रहा हूँ। अपने बस अपने गूगल पे जाना है, ब्राउजर पे जाओ और बस टाइप करो edutap, हमारा नाम edutap.in, और इंटर प्रेस करो एंड यू विल लैंड ऑन आ होम पेज। आपको यहाँ सारे कोर्सेज दिखेंगे, इसमें आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और आपको दिखेंगे सारे कोर्सेज। पहले टेस्ट सीरीज हैं आपके पास, ये रही फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज और फेज़ 1 की टेस्ट सीरीज। फिर ये आपका फेज़ 2 का एक लाइव क्रैश कोर्स है जो फेज़ 2 के लिए होगा सिर्फ, इसमें फेज़ 1 इंक्लूडेड नहीं है, बट ये है गाइज आपका एक स्पेशल लाइव क्रैश कोर्स जो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लिए है, रेड वाला है, ठीक है। इसमें फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 दोनों की लाइव क्लासेस होंगी, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। और इस पर अभी हम 80% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, द कूपन कोड इज capital RBI 80. That's the
द कूपन कोड फॉर दिस। और गाइज अगर आपको एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म, तो ये है आपके कोर्सेज, ये सिल्वर कोर्स जो फेज 2 और इंटरव्यू के लिए, और ये है जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फेज 1 प्लस फेज 2 और इंटरव्यू तीनों के लिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, साथ साथ प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलती हैं जो आप अपनी स्पीड से अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, समरी शीट्स मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं फेज 1 और फेज 2 दोनों के। और गाइज इस पे अभी हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज capital RBI 75. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, और हमारे कोर्स से रिलेटेड भी अगर आपने कुछ जानना है तो प्लीज़ कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज़ 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on putting in the efforts, and I'm sure your endeavors will come true one day. So, having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again very soon next week. Till then, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. Bye bye, take care, and have a good day, guys.